করিমগঞ্জে শিক্ষক দিবস উদযাপন 28 জন গুণী শিক্ষককে সংবর্ধনা জানানো হলো করিমগঞ্জে। পূর্ণ মর্যাদায় 63তম শিক্ষক দিবস পালিত হল করিমগঞ্জে। শিক্ষক দিবস উদযাপন সমিতির উদ্যোগে জেলা গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে মূল অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন রাজ্যসভার সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জেলায়ুক্ত মৃদুল কুমার যাদব, বিশিষ্ট সমাজসেবী সতু রায়, স্কুল পরিদর্শক নীলম জ্যোতি দাস, উপপরিদর্শক খয়রুল ইসলাম হাজারি প্রমুখের উপস্থিতিতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। করিমগঞ্জ জেলা শিক্ষক দিবস উদযাপন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আজ জেলার নির্বাচিত শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। দার্শনিক, রাজনীতিক, শিক্ষক, সমাজ চিন্তাবিদ সবকিছুই ছিলেন। এই দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই বিদেশে শিক্ষকতা করছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন ইস্টার্ন রিলিজন অ্যান্ড ইথিক্স। এই ইথিক্স শব্দের মধ্যে তার সম্পূর্ণ জীবন ছিল। তার যতই লেখা বই বা দর্শন শাস্ত্র লেখা, আইডিয়ালিস্টিক ওয়ে অফ লাইফ, হিন্দু ওয়ে অফ লাইফ, ইস্টার্ন রিলিজন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন থট, এই সবগুলোতেই আদর্শের কথা উল্লেখ আছে, নীতির কথা উল্লেখ আছে। তো এই যে তাকে তার ছাত্ররা তার জন্মদিন পালন করার অনুরোধ রাখলেন, তিনি তো সেই অনুরোধ রাখতে পারতেন, কিন্তু না, তিনি একজন শিক্ষক। এরা ভাবেন যে তিনি তার আগে এই দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন 1952 সনে, আবার 57 সনে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন। তিনি এই জন্মদিন পালনের অনুমতি দিতে পারতেন, কিন্তু এই যে ব্যতিক্রমী যে সিদ্ধান্ত জানেন, একটা সিদ্ধান্ত, পরামর্শ এবং এক উপহার, সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছেন যেটা আমার জন্মদিন হিসাবে না, উপদেশ দিয়েছেন এটাকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করব। আর আমরা শিক্ষকরা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষকে আমরা একটা উপহার হিসাবে আমরা পেয়েছি, আমাদেরকে উপহার দিয়ে আজকের এই যে দিবস, 63তম শিক্ষক দিবস, 62 বছর আগের এই সিদ্ধান্ত, এই উপহার আমরা পেয়েছি, এটাকে কিন্তু আমাদের সেই মর্যাদা সহকারে পালন করতে হবে। হয়তো তার মনে এটাই ছিল যে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করলে শিক্ষকদের সম্মান জানানো হবে, কৃতি শিক্ষকদের বিষয়ে আলোচনা হলে
ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হবে। আমার শুভেচ্ছা, আমার আন্তরিক অভিনন্দন আপনাদেরকে জ্ঞাপন করব। আমরা সবাই জানি যে 1888 খ্রিস্টাব্দে 5 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজকের দিনে মাদ্রাজে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ওনার জন্মের দিনটাকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসাবে আমরা পালন করি। আসলে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হি ফিল প্রাউড, উনি নিজেকে গর্ববোধ করতেন যে শিক্ষক যদি ওনাকে কেউ বলতো বা শিক্ষক সমাজ শিক্ষা, উনি গর্ববোধ করতেন কেউ যদি ওনাকে শিক্ষক বলতো। এবং সেই সুবাদে সবাই বলে গিয়েছে যে ওনার জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মাইসুর ইউনিভার্সিটিতে 1922 খ্রিস্টাব্দে যখন উনি চলে যাচ্ছেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি, তো ওনার ছাত্রছাত্রী ওনাকে পালকি করে একদম রেল স্টেশন নিয়ে গেল। তো পালকি করে নিয়ে গেল, ছাত্ররা একদম ভারাক্রান্ত, দুঃখিত। তো ছাত্ররা বলবো যে স্যার আপনি চলে যাচ্ছেন, আমরা অনেক দুঃখিত, আমরা মর্মাহত। তো আপনার কথা তো প্রত্যেকটা সময় মনে পড়বে। আজকে আমরা চাই যে প্রত্যেকটা বছর আপনি আমাদের মধ্যে থাকবেন না, আপনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, আপনি বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, অনেক জায়গায় আপনি যাবেন, আপনার আদর্শ আপনার চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করুন, কিন্তু আমরা চাই আপনার জন্মদিন আমরা পালন করবো। উনি বলে ঠিক আছে পালন করবে, তাহলে আমার জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করবো। সেই জায়গা থেকে শুরু করে আজ অবধি আমরা প্রত্যেকটা বছর আমরা শিক্ষক দিবসগুলো পালন করি। আর শিক্ষক, গুরু এবং শিক্ষকের, গুরু এবং ছাত্র, গুরু এবং শিষ্যের যে পরম্পরা, সেটা আজকের নয়, অনেক আগে থেকে চলে আসছে। हम हमारे दूसरे राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए सारे टीचर्स के प्रति अपनी श्रद्धा और हमारा ग्रेटिट्यूड अर्पित करते हैं और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आज के दिन में जो आपको रिस्पेक्ट, रिफ्लेक्शन और ग्रेटिट्यूड बच्चों से मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है और समाज से मिलता है, वो आपके जीवन में एक नया मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और आपको और फोर्स के साथ काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जिला प्रशासन की ओर से मैं पर्सनली आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने जो अभी आयोजित पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोगों को सपोर्ट किया, आप लोगों ने जो रिलीफ में हम लोगों को सपोर्ट किया और विभिन्न एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज जो आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जो एग्जामिनेशन हो या कुछ भी, कोई सर्वे हो, कुछ भी हो, तो वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ फील्ड एक्टिविटीज विदाउट योर हेल्प। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इसमें प्रेरणा से काम करने के लिए। साथ ही साथ सरकार की तरफ से पिछले कुछ 4-5 सालों में शिक्षकों की बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, बल्कि हमारा राज्य देश के बहुत कम राज्यों में है जहां लाखों भर्तियां शिक्षकों की हुई है पिछले 4-5 सालों में। साथ ही साथ अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लगभग 23,000 टीचर्स को रेगुलराइज किया, जिसमें करीबगंज के लगभग 1700-1800 टीचर्स हैं। इसके लिए भी सरकार ने कदम लिया है और साथ ही साथ इंश्योरेंस का स्कीम भी सरकार ने लॉन्च किया है। तो सरकार तत्परता से बहुत सारे कदम टीचर्स के बेनिफिट के लिए ले रही है। एंड साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो स्कूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करना है, हमारे सारे स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम हो, वहाँ पे अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाने का तत्पर हमारा सरकार करता रहता है। तो आज के पल में और पुराने के ज़माने में हमारे जो
पूरी सरकारी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। पहले लाइट नहीं होती थी, पहले हमारे में टीवी नहीं होते थे, अभी हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं सरकार से मुफ्त मिलती हैं। वो बुक्स हो, फीस फ्री हो या पुस्तकें हो, वो सब हमको फ्री मिलता है। और टीचर्स को भी जो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा सैलरी इन द सेंस की पहले से वो रेगुलराइज हो गए हैं, नया रिक्रूटमेंट हो गया है, और ये सब शिक्षा व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट का जो प्रयास सरकार कर सकती थी उन्होंने किया है। ये एक आज का जो दिवस है वो आपके एप्लीकेशन के साथ साथ एक रिफ्लेक्शन का भी टाइम है, जहां हम रिफ्लेक्ट करें कि जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो एकेडमिक कर्तव्य है और हमारा जो सोशल कर्तव्य है, वो हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्कूल में जाते हैं तो उन बच्चों से पूछते हैं, छोटे बच्चों से, कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमको टीचर बनना है। आप ये सोचिए कि ये आप उनके जीवन में परिवार के बाहर पहला ऐसा मौका होता है कि जो आप उनके जीवन में एक योगदान देते हैं और उसकी छाप उनके जीवन भर में रहती है। तो आपका जो दायित्व है और आपका जो कर्तव्य है सिर्फ एक एकेडमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, उनके जीवन में कैसे उनको अच्छा सिटीजन बनाना, उनको कैसे प्रेरणा देना और कैसे उनको आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रेरित करना, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत से टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड है हमारा, और हमारा हमेशा शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ समापन करने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो गुणोत्सव होता है उसमें करीबन की रैंकिंग हमेशा हम लोग नीचे से देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे लास्ट, सेकंड लास्ट आया, थर्ड लास्ट आया, क्या आया। तो इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। उसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा हमें परिश्रम चाहिए, सबसे ज़्यादा आपका योगदान चाहिए। हमेशा आउट ऑफ द इंटायर 30-35 डिस्ट्रिक्ट हमारा हमेशा लास्ट 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें आप लोग काम करेंगे। साथ ही साथ मैंने बताया कि कैसे सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है एजुकेशन में, लेकिन हम पाते हैं कि बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि स्कूलों का अमेलगमेशन हो रहा है, लोगों का स्कूल बंद करने के लिए सरकार को जो जहाँ पे स्टूडेंट्स का है वो करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में आप लोग सोचें, प्रयास करें। और ये मैं आपको अनुभव बताना चाहता हूँ कि लोग सबसे ज़्यादा हमारे जो ऑफिस में आते हैं वो इस स्कूल का इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम आते हैं कि स्कूल में टीचर दे दीजिए या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए या कुछ परेशानी है दे दीजिए। वे कम मोस्टली फॉर कि हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, हमारा कुछ बहुत दूर होता है, हमें कुछ आस-पास भेज दीजिए। अब ये एक बोलने की बात है, ऐसे हम हैं और जो भी ऑफिसर्स हैं वो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अपने जिले में ही अगर आपको 20 किलोमीटर जाने को बोल दिया तो आप लोग परेशानी होती है। तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द रिस्पेक्ट एंड जो दायित्व आप लोगों को सब समाज सौंपता है। तो इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है। और आज के कार्यक्रम में हमारे ऑनरेबल MPs MLAs यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने आप लोगों को मोटिवेट किया, आप लोगों को सराहा। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षक एवं अध्यापन कमेटी का सभापति होने के नाते मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में करीबगंज जिले की जो शिक्षा की दशा है वो और इम्प्रूव होगी और आप सभी का उसमें बहुत योगदान होगा। और आने वाले समय में जो आज के दिन जो हमारे ऑनरेबल CM सर जो बेस्ट टीचर्स को अवार्ड कर रहे हैं उसमें करीबगंज के किसी भी टीचर का नाम नहीं है, लगभग सभी जिलों का नाम है, हमारे करीबगंज का नाम नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे करीबगंज का भी नाम होगा और आपके बीच आके हमें बहुत खुशी का अनुभव हुआ और बहुत हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनका कल्चरल प्रोग्राम है, आप लोग भी इसको एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो मैं अपना समय भाषण को बढ़ाते नहीं, बिना बढ़ाए हुए आप लोगों का धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।